میں تحقیق کر رہا ہوں جی۔ اچھا یعنی احمدی نہیں ہیں آپ؟ میں ابھی ایک ان مراحل میں ہوں کہ ابھی میں نے مطلب کس چیز کو چوز کرنا ہے۔ جی اچھا آپ پچھلے مرزا 55 سال سے تحقیق کر رہے ہیں عامر حق بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سوام بیننا و بینکم، کہ آپ اور میں اس بات پہ ہیں جو آپ اور میرے درمیان مشترک ہے، پہلے تو ہم وہاں پہ مرزا فیصلہ غلام کریں۔ احمد قادیانی، کیونکہ مجھے پتا تو چلے نا، ابھی تک تو میں اس چیز کو آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، مگر یہ ہے کہ آپ پھر تھوڑا سا اور بھی ٹیکنیک یعنی ڈوز جو ہے اس طریقے کا بھی انٹر ہونا چاہیے۔ نہیں وہ میں نہیں، آپ سے وہ یہ دیکھیں سوام بیننا و بینکم سے کیا مراد ہے؟ نہیں اوہو میری مراد بات بتائیں نا، سنیں، اس سے مراد کیا ہے؟ میں آپ سے یہ چیز جاننا چاہ رہا ہوں، یار مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کچھ بھی دے دیں، آگے بڑھ جائیں گے۔ سوام بیننا و بینکم، یہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے قرآن مجید میں جو آیت یہ الفاظ ہیں؟ وہ بھائی آپ نے کس لیے یوز کیا ہے؟ سوام بیننا، اس چیز کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ آپ کے کیا اور میرے پوچھ درمیان مرزا صاحب مشترک ہے، مرزا غلام، اچھا قرآن اور بہت حدیث اچھے، مشترک ہے آپ سے نا آپ اور پوچھ میرے یہ رہا ہوں، درمیان۔ آپ سے پوچھ یہ رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں رائے کیا ہے؟ میں سواء اس کی بات بیننا نہیں و کر رہا، بینکم، میں یہ کیا اس کی ہوا؟ بات نہیں کر رہا، میں اب آپ کی اور میری بات کر رہا ہوں، میں تو مرزا قرآن کی غلام بات کر احمد رہا ہوں۔ قادیانی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ تو بتائیں۔ میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں کہ اس بات کی مرزا طرف آؤ غلام جو احمد آپ اور میرے قادیانی کے بارے درمیان میں مشترک ہے۔ رائے کیا ہے آپ کی؟ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنی ذاتی بات کر رہے مرزا ہیں۔ عامر غلام احمد حق قادیانی کے بھائی، بارے میں رائے کیا ہے؟ بھائی دیگر بھائی ذرا رکیں، میں ان کے صبر کا آزمانا چاہتا ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ یہ ریسرچ کر رہے ہیں، ان میں اتنی ہمت ہے کہ یہ بات کر سکیں اس چیز کے اوپر۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، آپ ذاتی بات کر رہے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں رائے کیا ہے؟ جی سوام بیننا و بینکم۔ چلو بہت اچھے، سوام بیننا و بینکم۔ یار کیا آپ، اگر آپ اس ٹاپک پہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہو نا تو یہ دروازے سے گزر کے جانا ہے، دیکھیں اس کے قرآن اور علاوہ کوئی حدیث سے آپشن نہیں بات ہے۔ کرنی ہے، آپ نے اور میں نے بات آپ کرنی ہے یہ نا، اس اگر نہیں دروازے سے کرنی ہے گزر تو کے پھر جانا ٹھیک ہے، پڑے گا کہ اگر مرزا آپ غلام نے اور احمد میں نے قادیانی کے بات بارے نہیں میں کرنی، رائے کیا ہے، اس کے اگر علاوہ آپ بات نے نہیں آگے اور بڑھے میں گی۔ نے بات نہیں کرنی تو پھر ٹھیک ہے، کرنی ہے تو قرآن اور حدیث سے کرنی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے دروازے سے آپ کو گزار کے بات کروں گا، اس کے علاوہ نہ آگے بڑھنے دوں گا آپ کو نہ خود جاؤں وہ گا، رزلٹ یہ ہے، یاد وہ رکھنا۔ آخری چیز ہے کہ جہاں پہ ان چیزوں آخری سے چیز نہیں پہنچ ہے، کے آخری چیز نہیں ہے، وہ پہلی چیز ہے جس کے اوپر آپ آپ کو اس چیز حکم کے دینا بارے میں پڑے گا، ریسرچ پھر کر میں آپ سے رہے ہیں، بات کروں گا اور قرآن و سنت کی بنیاد پہ آپ ایک کروں گا، مرزا چیز پہ، قادیانی کو پیش نہیں کروں گا۔ میں بتا دیتا ہوں، آپ ایک چیز پہ بات کر رہے ہیں، آپ نے چلیں پہلی آپ کا یہ ورڈکٹ ڈر دے بھی دیا۔ ختم کر دوں، آپ کا یہ ڈر بھی ختم کر دوں کہ کہیں میں مرزا غلام احمد قادیانی کو پیش نہ کروں، صرف آپ کی رائے لے لوں کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس کے بعد قرآن و سنت کی بنیاد پہ بات ہو، چلو یہ بھی آپ کو چھوٹ دیتی۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ ایک چیز کے بارے میں پہلی ورڈکٹ دے دیں یا اپنا فیصلہ سنا دیں اور اس مرزا کے بعد غلام آپ کہیں احمد میں تحقیق قادیانی کر کے رہا ہوں۔ بارے میں رائے کیا ہے، جب آپ، اچھا بہت اچھے، ابھی کہہ رہے ہیں جب آپ کسی چیز کے بارے میں پہلے ورڈکٹ دے دیں، اس کا مطلب ہے اس نتیجے سے آپ نے مرزا قادیانی کو سچا ثابت کرنا ہے۔ ہاں تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے سوا بیننا و بینکم پہ بات ہو رہی ہے، ہاں تو آپ وہی مجھ میں سے بات کر پوچھیں، رہا ہوں نا، آپ نے آپ پھر مجھ سے بھی پوچھیں، اس چیز پہ آپ مجھ سے اعتراض کیا، پوچھیں آپ نے مرزا غلام سوام احمد بیننا قادیانی و کے بارے میں بینکم پہ میں کیا رائے اعتراض رکھتا کیا، ہوں، آپ نے کہا آپ نہیں مجھ سے نہیں وہ پوچھیں بات مرزا قرآن غلام مجید کی احمد بات قادیانی سائڈ کے پہ بارے میں رکھو، میں کیا رائے قرآن رکھتا ہوں، مجید میں کی آپ کو بات بتاؤں پیچھے گا، رکھو، جب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ میری مرزا بات پہ غلام اعتراض احمد کرو۔ قادیانی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اصولاً آپ کو بتانا چاہیے، میں نے آپ کو اصول کیونکہ آپ بتایا کو ہے، پتہ ہے میں یہاں نے آپ پر کو ٹک اصول ٹاک کی بتایا ہے۔ ڈیموگرافی کے اکارڈنگلی ہمیں یہ چیز کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے، ادروائز آپ کی ریسرچ کی اللہ رتی اکبر، ویلیو بھی میری نظر کے اندر نہیں ہے اللہ اور میں اکبر۔ اپنا ٹائم ویسٹ ہی کرنا چاہتا، جب تک آپ یہ چیز ثابت نہیں کرتے بات ہوگی قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر، مگر سب سے پہلے آپ کو اس دروازے سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ ٹھیک ہم تو نے کئی قادیانیوں کو دیکھا ہے کہ وہ چپ چھپیتے کو ملحد کے بیس میں آتا ہے، کوئی مسلمان کے بیس میں آتا ہے، کوئی گنوسٹک کے، کوئی ایتھیسٹ کے بیس میں، کوئی ہندو کے بیس میں ہمارے ساتھ آ کے ٹائم ویسٹ کر کے نکل جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا، میرے سامنے یہ چلاکیاں کئی لوگوں کی نہیں چلیں، آپ کی نہیں کہہ رہا مگر کئی لوگوں کی یہ چلاکیاں نہیں چلیں، میں اپنی انرجی غلط جگہ پہ ویسٹ کرنے والا بندہ نہیں ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹک ٹاک کے اوپر یہاں بڑی تعداد کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کو یہ شوق حاصل ہے کہ جناب جا کے بحثاں کریں گے، قرآن کدھر گئے نے، نس گیا دوڑ لا گیا ہے، ہاں پد نکل گئے سو۔ عامر بھائی چھوٹی سی بات کر سکتا ہوں اگر بات مکمل ہو گیا تو؟ ایک منٹ صرف میں اس کا نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں، ایک منٹ جی جی فاطمہ جی۔ بھائی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے دروازے سے گزر کر یہ ٹاپک ڈسکس ہوں گے، اس کے بغیر جانے نہیں دینا، میں اپنی انرجی کیوں ویسٹ کروں؟ تو جو مرضی مانتا رہے، جس بندے سے پوچھا اس کا تو سانس نہیں نکل رہا بتانے میں، اب وہ آ گیا پھر۔ جی سوری اور بھائی کال آ گئی بتاؤ تھی میری، مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا مانتے ہو آپ؟ کال آ گئی تھی۔ اچھا آپ بات کر رہے تھے، ہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ
اگر ایک پہلے سے ہی فیصلہ میں کر دوں کہ بھئی یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے، اس کے بعد بھائی پھر وہ میں ٹاپک ہی تحقیق نہیں کروں، ہے، وہ اب وہ باعث ٹاپک ہی نہیں ہے. تحقیق میں نے ہے. کب آپ سے کہا؟ اچھا میری بات سنیں، اجرائے نبوت کے ٹاپک میرے پر سے کیا بات سننا کر کے کیا آپ چاہ نے رہے مرزا ہیں، کیا غلام سننا احمد چاہ رہے قادیانی کو نبی ثابت کرنا ہے؟ ہیں؟ مقصد نہیں مطلب آپ میرے سے کیا سننا چاہ رہے ہیں کہ ہاں میں سننا کچھ بھی نہیں چاہ رہا ہوں، کیا اصولی سننا طور کیا پر چاہ آپ کی رائے چاہ رہا ہوں. اب سن لے ذرا، سن لے ذرا. رائے سے کیا مراد ہے؟ اجرائے رائے سے نبوت مراد کے کیا ہے؟ موضوع پر بحث کرنے کے بعد آپ نے یہ جو آپ نے جملہ بولا ہے نا، اس جملے سے ہی مجھے وہ پتہ چل گیا کہ آپ کا مقصد جی کیا ہے. آپ کو سارا کچھ پتہ چل گیا، آپ بتائیں ہاں پتہ رائے چل سے گیا مراد مجھے، کیا ہے جیسے آپ آپ کو پتہ چل گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. کی؟ جی جی اس طرح کے اب کلیم سنیں سے ذرا، نا یہ جاہل اجرائے شاید ایسے نبوت کرتے ہوں، لیکن آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے مجھے کہ سارا مرزا پتہ چل غلام گیا احمد ہے. قادیانی، آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر ورڈکٹ لینے سے اجرائے نبوت کے موضوع پر کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ مان لیں آپ اجرائے نبوت کے قائل ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا بھی ثابت ہو جائے اور آپ کا عقیدہ اجرائے نبوت کا ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے ثابت ہونے سے آپ کے اجرائے نبوت کے عقیدے میں تو کوئی رکھنا نہیں پڑنا چاہیے کہ کسی جھوٹے مدعی کی وجہ سے اوریجنل نبوت کے منصب کے اوپر تو رکھنا نہیں پڑتا. اس یہ اچھا ٹھیک مطلب یہ ہے کہ یہ بو آپ مجھے کا آ گئی پوائنٹ آ ہے. گیا، ابھی چپ کر لیں. آپ ٹھیک ہے ابھی چپ چپ کر تب لیں. کروں گا ابھی جب آپ مجھے یہ جواب بتائیں، دیں گے، مجھے ورنہ یہ چپ ہونے بتائیں، والا چکر ہی کوئی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں میں نے جب اصول آپ آپ جواب کا دیں لینا گے، ہے یا قرآن کا لینا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی پہ اپنی رائے دینی ہے کیونکہ امیر آپ کا حق اوریجنل صاحب مجھے مسئلہ یہ اجرائے بتائیں، نبوت ہے، مجھے اس یہ میں رکھنا بتائیں پڑتا ہی نہیں ہے. میں نے اصول آپ کا لینا ہے یا قرآن کا لینا ہے؟ آپ نے جہاں سے مرضی اصول لینا ہے، مرزا غلام احمد بات مجھ سے کرنی ہے تو مرزا غلام قادیانی سے شروع ہوگی. اصول اپنے ٹھیک ہے پاس ابھی رکھیں. میں قرآن مجید کا جو اصول لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا سواؤ غلام بیننا احمد و قادیانی کے بینکم. بارے میں ابھی آپ نے آپ رائے یہ اصول بتانی بتائیں ہے، کہ تب آگے چیز چلے گی، اس کے علاوہ نہیں چلے گی. اچھا ٹھیک ہے، اس یاد کا رکھیں، مطلب آپ کا اصول مختلف ہے قرآن سے. میرا اصول وہی ہوگا جو بات کا آپ کے ساتھ اس وقت ہے، جو آپ جس طرح کا اصول ڈیزرو کرتے ہیں. تو قرآن مرزا مجید کا تو یہ غلام اصول احمد نہیں ہے نا قادیانی کے بارے آپ کی اور میں میری. اپنی رائے دیں گے تو قرآن اور سنہ کے اصول پر بات کروں گا، آپ زور لگا کے جرائے نبوت ثابت کر کے دکھانا. کس پرنسپل پہ قرآن مجید کے کس پرنسپل سے آپ یہ مرزا بات نکال رہے غلام احمد قادیانی کے بارے میں جب تک رائے نہیں آئے گی، یاد رکھیں کیوں میں یہ جملہ بول رہا ہوں. آپ مانتے ہیں، اگر آپ مانتے ہیں اجرائے نبوت کو، اجرائے نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹا ثابت ہونے کے باوجود رکھنا نہیں پڑنا چاہیے. نعوذ باللہ، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے کہ اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے؟ نہیں پڑ سکتا. کیا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر جھوٹی نبوت کا اثر پڑ سکتا ہے کوئی کرے؟ نہیں پڑ سکتا. تو آپ نے یہ کیوں یہ جو ٹرک کھیلا ہے نا، اس ٹرک سے مجھے جو ہے نا وہ آ گئی ہے. ہاں دیکھیں یہ جو آپ نے ایک کہا ہے، قرآن کا میں کیوں پرنسپل بتا پہلے رہا ہوں. کسی موضوع سے ورڈکٹ دے دوں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اجرائے نبوت سے مرزا غلام احمد قادیانی کی صداقت ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، تو پہلے حکم لگائیں. دیکھیں میں وہی پہلے مجھے غلط بات بتائیں کر کہ رہے ہیں مرزا نا. میں قادیانی پہ یہ کہہ رہا حکم ہوں کیا کہ ہے. قرآن کا اصول یہ ہے، آپ مجھے قرآن کا وہ اصول بیان کرتے ہیں مرزا جس میں غلام پہلے احمد قادیانی کے وہ بارے میں بات رائے جو. بتائیں گے تو قرآن، اچھا یاد رکھیں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اب میں یار قرآن کیا و بندے سنہ ہیں پر یار آپ. اجرائے نبوت کے اور ختم نبوت کے موضوع پر قرآن و سنہ سے بات کرنے کا بالکل انکاری نہیں کروں گا. نبوت ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن و سنہ سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ قرآن کا موضوع نہیں. مرزا تحقیق کیا غلام احمد اب قادیانی کے بارے مجھے میں یہ جب تک بتائیں حکم آپ نہیں لگائیں گے یہاں پر ٹک ٹاک کے اوپر، تب تک یار ہم آگے نہیں بڑھیں گے. دنیا کی کون سی عدالت ہے جس میں آپ یہ والی بات کریں گے تو وہ کہے گا یار دنیا بڑا کی سیاح عدالت بندہ میں ہے، وہ بات کہے ہو گا رہی یار ہوتی یہ تو تب بندہ ہے بات یا یہ کرتے. کوئی کس دنیا طرح کا کی بندہ ہے عدالت میں یہ. بات نہیں آپ کر رہے ہیں، دنیا کی آپ عدالت پہلے میں یہ ڈیسائیڈ کر لیں دنیا کہ کی یہ عدالت بندہ میں بات ہو رہی ہوتی، دیکھیں دنیا کی عدالت میں بات ہو رہی ہوتی تو آپ 2 منٹ کے اندر بات خارج ہو سنیں. آپ چکے ہوتے. پہلے کسی بندے کو دنیا کی مجرم یا عدالت میں بات ہو رہی ہوتی تو آپ 2 منٹ میں خارج ہو چکے ہوتے. اس کی ایک وجہ بندہ یہ ہے کہ ایک آپ بندے ایسے کو وکیل مجرم اس یا چیز کے بن کے گنہگار آئے یا ہیں. معصوم ڈکلیئر دنیا کر کی دیں، اس عدالت کے بعد میں پھر آپ کہیں جی دنیا میں کی تحقیق عدالت کرنے میں لگا ہوں. ایسے وکیل کی رتی برابر حیثیت نہیں ہوتی جو عدالت میں آ کر کہے میں ابھی ریسرچ کر رہا ہوں، میں نے کیس پڑھا نہیں ہے. عدالت ٹھٹا نہیں مار یہ کے ایسے وکیل کو باہر اس سے پھینکتی بھی ہے. غلط بات، اب اس سے اس بھی طرح زیادہ غلط دنیا بات یہ ہے کی، کہ پہلے آپ اس ایک لیے بندے کو دنیا کی ڈکلیئر کریں وکیل کہ کی یہ بات نہ مجرم کریں، ہے دنیا کی اور وکالت کی پھر آپ بات کیا نہ ہم کریں. تحقیق کر رہے ہیں. آپ جو مجھ سے بات کرنے کے لیے ہیں وہ بات کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا رائے ہے. اس کے بعد میرے ساتھ اجرائے نبوت کے اوپر بات کریں نا قرآن کی آیتیں پیش کر کے. دنیا کی عدالت کی بات کریں گے تو ٹھڈا مار کے ایسے وکیل کو باہر پھینکتے جس نے کیس اسٹڈی نہ کیا ہو. دیکھیں عدالت صبر میں آ کا کے ہم ریسرچیں نہیں کی امتحان لے رہے جاتی، تھے اور عدالت صبر میں کا آ پیمانہ کے آپ سے دعویٰ کیا لبریز ہو گیا. جاتا ہے، عدالت میں آ کے میرا دلیل دی بھائی جاتی ہے، عدالت میں آ کے پہلے صبر میرا اپنے ٹیسٹ آپ ہو کو رہا اس تھا مینڈیٹ کو اور ثابت پیمانہ کیا آپ جاتا کا ہے کہ لبریز میرا ہو یہ گیا. مینڈیٹ ہے کہ نہیں ہے کہ میں اس اصول پہ بات کر سکوں. ادروائز عدالت آپ کو اجازت بھی نہیں دیتی ہے. دیکھیں لہذا میں جلدی سے اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ میں تپڑ سوئی ہے پھنس گئی اور نا، اگر ابھی آپ میں سوئی پھنس ہمت گئی، ہے اب اور اگر ابھی آپ یہ میں نکلے حوصلہ گی اس تو چیز کا پھر ہے کہ آگے آپ کے بات پاس چلے اتنے گی. مضبوط دلائل ہیں کہ آپ اجرائے نبوت پر کوئی دلیل پیش کر سکیں، تو یاد میرا رکھیں کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر حکم لگا کر آپ کو آنا پڑے گا. یوں سمجھ جی لیں کہ جیسے عدالت کے اندر آپ سے ایفیڈیوٹ لیا جاتا ہے، حلفاً یہ کہا جاتا ہے جو کہوں گا سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہوں گا. کوئی پھنس گئی ہم نے آپ یہاں کی. قادیانیوں کو دیکھا ہے کہ ٹیٹو پارٹیاں کرنے کے لیے مختلف قسم کے بیس بدلتے ہیں، کبھی برقعے پہنتے ہیں، کبھی نائٹیاں پہنتے ہیں، کبھی پگڑیاں پہنتے ہیں، کبھی داڑیاں لگاتے ہیں، اور کبھی کسی قسم کا جناب وہ الہاد کا جناب پینٹ کوٹ پہن کے
के आ थोड़ा जाते सा हैं। हौसला, थोड़ा सा हौसला। अगले को लिहाजा ये बता याद देना। रखना है, हौसला मैं आपको देता हूं
हौसला मैं खुश्क करके आपको देता हूँ, आप टेंशन ना लें, तैयार कर रहा हूँ अभी वही हौसले में डालता हूँ आपके। मगर ये याद रखनी है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर जब तक हुक्म आप नहीं लगाएंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आपको लगता है कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं जो उसूल से मुख्तलिफ है तो फटाफट अपनी राय दे के आगे बढ़े, आपको पता चल जाएगा 2+2=4 की तरह मैदान के अंदर कि आप अपना दलील के ऊपर पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। आपको मौका दे रहा हूं मैं। जी जी, मैंने कहा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को साबित करना है, जो आपका असूल है ये गलत है। आपका उसूल भी गलत है। फिर कैसे गलत मुझसे है? वो मैं बात कुरान से करे, बात कर रहा मुझसे हूं, वो आप बात इस बात का रद्द करे, कर मुझसे रही। बहस वो करे जो अपने दावे के अंदर मजबूती रखता हो। आपने कहा मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो आप इस नजर ना आ। आप इस बात को रिसर्च कर कुरान रहे से हो, रद्द करें कि अगर पहले आप वो रिसर्च बात कर करें रहे जो हो, आप और मेरे दरमियान रिसर्च कर इख्तिलाफ रहे है। हो, जिस बात अगर आप का रिसर्च आप कर रहे हो तो तो फिर बात आपको राय सुनिए, देनी होगी एक बात ऐसे बंदे सुनिए। के ऊपर कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में आपकी राय क्या है, उस बारे में आपने क्या रिसर्च की है। मैंने यहां आप तक आपको कहा था कि देखिए, हाँ या ना कुरान में का ये कुछ असूल बोल ही दो नहीं है। आप ताकि बात आगे चले। आप कुरान का ये असूल ही नहीं है। उसूल आप अगर कभी अदालत का उसूल लेके आते हो, कभी कुरान का उसूल लेके मैं आते आपको हो, दोनों कभी तरह अपनी से मर्जी समझा का रहा हूँ, उसूल आपको लेके समझ आ आते रही हो। है इस बात की। आप कोई अपने एक असूल की उसूल बात कर रहे लेके हैं, आओ, कुरान क्या है, कोई अदालत एक क्या है वो। उसूल लेके आओ कि यहाँ टिकटॉक के ऊपर आप मेरे साथ बात कर रहे हो, आप कहते हो मैं रिसर्च करने अच्छा, के लिए आया हूँ। टिकटॉक का उसूली असूल तौर पर और है आपको और आपका कुरान जवाब का मिल असूल गया और था, है। आप फटाफट आके मेरे अंदर घुसना शुरू हो गए। उसूली तौर पर आपको आपका जवाब मिल चुका था। अगर आप तशफ़ी नहीं मिली थी, उससे मेरा सेटिस्फाई नहीं थे, चुप बात करके में चलते बनते। इसका मगर मतलब आपने ये कहा हुआ नहीं भाई, मैं कि तत्ते कुरान तवे का हथ पाना है। असूल और तो उन टिकटॉक तत्ते का तवे असूल हथ तो पाया तो मुख्तलिफ मिर्जा असूल है। गुलाम अहमद और कादियानी को आप पहले जो आपको हैं साबित करना टिकटॉक पड़ेगा का कि असूल आप उस चाह पर रहे क्या हैं, राय रखते हो। उसके बाद राय नूबत के पर मेरे साथ बात कर लेना। कुरान के असूल पे याद नहीं चाह रखिए, रहे आप। मुझे दो चीजें मैं यहाँ पब्लिक के सामने बोल यार रहा हूँ, दो मैं चीजें, ये बात ही दो फजूल है ना, चीजें। ये बात ही नंबर फजूल है वन, कि नंबर जब वन, आपने इख्तलाफ पे जब बात तक करनी है। आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर अपनी राय अच्छी या बुरी जो भी है, मैंने यहां तक बोला सुई कि फंस आप गई ये ना भी आपकी, बोलते। चले, सुई मैंने फंस आपको गई। दूसरी चीज भी कही कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताबें आपके रद्द पर पेश नहीं करूंगा। आप डरे नहीं, परेशान ना हो, क्योंकि हमारे पास कई हिंदू, कई जनाब ईसाई और कई कादियानी मुल्हिद बन के इस तौर पर आ जाते हैं कि यार एतराज़ करते हैं इनके ऊपर, मगर ये कहेंगे कि हम एग्नोस्टिक हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, लिहाजा मिर्जा साहब को किसी तरीके से बचाया जाए। यार ये हमारा अगर तजर्बा अगर है। बात सुनो, अगर बात ये लिहाजा होती कि अगर आपके उनकी सामने दो चीजें हैं। अगर उनकी नंबर वन, किताबों से उनका मिर्जा रद्द गुलाम होता। अहमद कादियानी की राय जब तक उसके ऊपर आप नहीं देंगे, अच्छी या बुरी जो भी आपकी देखिए, रिसर्च बात कहती है, सुने, पॉइंट नंबर बात वन। सुने, अगर उनकी दूसरी किताबों चीज, से उनका रद्द जब होता तक, दूसरी तो चीज, फिर जब आज तक तक उनकी आप, किताबें जब उन्होंने तक आप उनकी ये राय वेबसाइट से नहीं आप दे डाउनलोड देते हैं, करते हैं। उसके बाद हम अगले टॉपिक के अंदर एंटर होंगे और मुखलसतन आप खालिस देखिए, कुरान और सुन्ना की बुनियाद के ऊपर होंगे, खालिस। अभी ठीक है, मैं अभी ये मैं बता आपको देता हूँ, गारंटी मुझे दे रहा हूँ। मौका दे, मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ, अभी थोड़ा सा ना हौसला रखना है आपने। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर बात बात होगी सुनने यार, तो फिर हौसला रखूंगा, वरना मैं वही हौसला आपको दे दूंगा। ठीक है ना याद यार, रखना। अब थोड़ा सा हौसला करें, बात सुनने। आपने इतनी बात की, अभी मेरी बात सुन लें। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर बात करनी है। जी, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने उनको गलत साबित करना है तो उनकी किताबों से मिर्जा करना है। गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर अपनी राय देनी है। मैं अभी अगर किनकी बात मगर कर रहा हूँ? चूंकि चुनाचे नहीं चलेगा, मिर्जा गुलाम अहमद अच्छा, आप कादियानी के अपनी ऊपर मर्जी की अपनी राय आपने देनी बात, है। आप अपनी मर्जी की बात कहलवाना जब चाह रहे हैं और अपनी फिर वो मर्जी की बात होगी नहीं है, तो फिर उसूल बाद है। में आप अपनी मर्जी की बात नहीं चाह रहे हो मुझसे कहलवाना। आप अपनी मर्जी का उसूल क्यों चलवा रहे हो? छोड़ के सिर्फ ये कि बात आप आगे चले, अपनी मर्जी आपकी का बात पे उसूल, लेकिन आप अपनी उस पर भी मर्जी एग्री नहीं कर की, रहे। आप अपनी मर्जी की डिक्टेशन मुझे क्यों चलवा रहे हैं? जब आप अपनी मर्जी कर सकते हैं तो मेरा भी हक है, अच्छा मैं अपनी मर्जी चलवाऊं? हाँ, मैं आपका पाबंद हूं? ठीक जब है। आप मेरी मर्जी के मुताबिक कह रहे हैं कि जी आपकी मर्जी के मुताबिक जा रहे हैं, तो आप भी अपनी मर्जी के मुताबिक चीजों को लेकर चलना यार चाह रहे बात हैं। सुन ले, क्या हो गया? तो थोड़ा वजह, सा आपका ब्रेक वाला वो है या सिर्फ एक्सीलेटर हाँ, ही मैं लगा हुआ आपको है बता दूं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की चौक के अंदर मंजी यहाँ बिछा के जब तक हम नहीं ठोकेंगे, अगर आपने ये जुबान इस्तेमाल करनी है तो फिर आपको सुनना पड़ेगा। मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने आपकी वैसे वजह थोड़ा से सा ना, कई कादियानियों, जितना मैंने आपकी आपको वजह जितनी और तारीफें आपकी सुनी है ना, वजह मैंने से कहा कई यार ये बंदा तो बड़ा कोई और कई बड़ा अच्छा आलिम कोई बंदा है कादियानियों, जो मैं तो कुरान और मेरा हदीस क्लेम से ही नहीं बात है, करता है, मेरा क्लेम ही लेकिन नहीं आप है तो चाचू, जैसा वो कोई और जातियात पे आ रहा है। चाचू मेरा क्लेम ही नहीं है, आपको कोई और किसी ने बहाना लगाया होगा। मैं मंजी ठोकता हूँ चौक के अंदर, आपको किसी ने गलत फहमी कर दी है कि ये कोई आलम दीन है, कोई स्कॉलर है ना। मैं कादियानियत के लिए मलकुल मौत हूं। कमाल हो गया है, ये आके मुझे कहते हैं कि जनाब ये कोई स्कॉलर है, कोई आलम दीन है, बड़ा ठंडे मिठे से। ना 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 देखिए, ना, मैं मरीज देख के इंजेक्शन ठोकता हूं उसके पिछवाड़े के अंदर। और ये बात याद रखनी है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर जब तक राय नहीं देनी तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। आपको ये गलत फहमी हो चुकी हुई है मीर साहब कि हम यहाँ टाइम वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। लग ऐसे रहा है कि टाइम नहीं वेस्ट होगा ज्यादा यहाँ पड़ी हुई पर। है। जब तक मिर्जा गुलाम अहमद कुरान से- कादियानी के ऊपर राय नहीं देते
तब तक आगे इजराय नबूवत के ऊपर देखिए, आपसे बंदा- बात नहीं होगी, बंदा उस तरफ जाता अच्छी है या बुरी, जिसका उसके जिस ना तरह की ग्रिप राय ज्यादा देनी होती है। है। दूसरी जिस चीज चीज, में ग्रिप ज्यादा मिर्जा होती है, गुलाम अहमद कादियानी की किताबें नहीं आपके सामने पेश करूंगा, इसलिए आपको थर थर कांपने की जरूरत नहीं है। ठीक। ये ये बात सब याद रख मतलब लें। कि आपकी और ग्रिप मेरे साथ ये कुरान और चापलूसी भी हदीस नहीं से ज्यादा चलेगी मिर्जा कि ये साहब कोई की मुफ्ती किताबों है, पे ये आपकी कोई मौलाना ज्यादा है, ग्रिप ये कोई आलम दीन है, कोई स्कॉलर है ना। मैं संगी कुट के दलाइल देंगा मुंह दे विच पा के। तो ये याद रखना है। हाँ, किसी को ये गमो गुस्सा ना रहे, किसी को ये शको शुबा ना रहे ये कोई आलम दीन है, ये कोई स्कॉलर है कि हाथ हम पर हल्का रखेगा, ये बड़ी मीठी मीठी बात करेगा, इसको चापलूसी करके निकल जाएंगे, इसको फुटे लाइन लगा जाएंगे, इसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे, इसको ठूंगे लगा के निकल जाएंगे ना। इंज नहीं होना। कुरान की वैल्यू दुनिया देवे तो तुसी साबित करना है इस चीज को। अगर आपके पास मौका है, ये आपके पास सुनहरा मौका है, सुनहरा मौका है आपके पास कि आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर राय देकर, अगर आप में दमखम है आपके दलाइल के अंदर, तो आप पब्लिक के सामने मुझे इजराय नबूवत के ऊपर साबित कर सकते हो कुरान से। मगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, बांदे रोंदे रिसर्चर होनू, रिसर्चर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि रिसर्च बेस अपनी राय दे सके कि मेरी राय क्या है। मैंने क्या ये कहा है कि मिर्जा कादियानी पे लानत डालो, मैंने कहा ये कहा है कि मिर्जा कादियानी को कद्दाब और दज्जाल कहो, मैंने ये कहा है कि मिर्जा कादियानी को फराडी और मक्कार कहो, मैंने कहा मिर्जा कादियानी पर अपनी राय दे दो। जिस बंदे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है वो मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आया है। जिस बंदे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है वो कह रहा है कि जी मैं रिसर्चर हूं, मैं भी सीख रहा हूं। चल भज जा, तू रिसर्चर है, हम रिसर्चरों से और जनाब मैं भी सीख रहा हूं, सवालों जवाब से बात नहीं करते। हमारा काम है ओपन हार्ट सर्जरी करना, हमारा काम है थिएटर के अंदर डालकर मंजी ठोकना, हमारा काम लोगों को समझाना सिखाना, वो तो अच्छे लोगों का काम है। मैं बड़ा खोचल आदमी हूं, आप समझ रहे थे मैं आके इससे कुछ सवाल प्यार मोहब्बत से करूंगा, इसको घेरने की कोशिश करूंगा अपने तरीके से, ये जनाब खड्डे दे विच आ जाएगा, ऐसी नहीं तैसी खड्डे खोचल के विच आ जाएगा। आपने याद रखना है, अगर आप सीखने की नियत से होते आप कांगरू के ऊपर सवार नहीं होते, आप सलीके तरीके के साथ बैठकर अपने नोट्स बनाकर चलते बनते। जिसको शायरी चढ़ती है इस चीज की कि जनाब मैंने जनाब तो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा। लो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत इतनी अच्छे। बात ये कर रहे हैं याद यार, अगले दिन सुन रखें, लिया याद करें, रखें अपनी सुनाने मिर्जा आते हैं, यार, गुलाम क्या हो अहमद गया? कादियानी के ऊपर जब तक आपने राय नहीं देनी है चाचू, आपने इधर उधर अहमदियत की तजलील का सबब बन जाना है जब तक आप रहेंगे। याद रखें, जब ठीक तक है, आप रहेंगे ठीक है। और जब तक मैं मौजूद हूं, म्यूट ये आपने करेंगे याद भी आप? रखना है कि अभी आप म्यूट अहमदियत की करेंगे? कादियानियत की तजलील का सबब आप बन जाएंगे। सिंपल तरीकाकार ये था कि अगर आपको लगता था कि दमखम है आप में और आप दलाइल की रोशनी में ये साबित कर सकते हैं कि जराए नबूवत है, आपके पास ये दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि आप मेरे सामने मिर्जा कादियानी के ऊपर अच्छी या बुरी जो भी राय रखते, उसके बाद हम आगे बढ़ते। मगर आपने आप ऐसा म्यूट नहीं कर किया। लेंगे? अभी म्यूट आके कर मुझे लेंगे? कहते हैं अभी ये तरीका चेक करो, तरीका वारदात वो भी अमर हक दे नाल ਹੋਏ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਨ ਮੁਰੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 साल बाद जाके पता चलिया थी कि साडा सौदा पठाना पे हो चुका है। तो ये याद रखनी है, आपने गौर से बात को सुनना है। जो चीज मैंने आपके सामने रखी है, मिर्जा कादियानी के ऊपर राय, अगला मौजू शुरू हो जाएगा खालिस कुरान और सुन्ना की बुनियाद के ऊपर। ये समझते थे यहाँ आके हम मीठे मीठे बन के नाम रख लिया मोहम्मद रखूंगा ताकि पता भी ना चले, यही तासुर दूं कि मैं मुसलमान हूँ ना। साथ नीचे कमेंट के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखता रहूंगा ताकि पब्लिक को ये तासुर जाए कि मैं मुसलमान हूँ। जब मैंने इसीलिए कहा राय, एक बंदा अपनी अहमदियत के बारे में क्या राय रखता है, कादियानियत के बारे में क्या राय रखता है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में क्या राय रखता है, उसके बाद लाख इख्तलाफ हो सकते हैं। हमारे कई मुसलमानों ने कई इख्तलाफात, कई राय, कई सवालात, कई एतराज़ात, कई तवहुमात, कई ऑब्जेक्शन रखे हैं जिसके ऊपर हम तसल्ली बख्श बात करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको अगर बात समझ आती है तब भी ठीक, नहीं समझ आती वो मजीद रिसर्च जारी रखते हैं। मगर हमारे साथ आके सिंह फंसाने की कोशिश करोगे और उसके बाद तवक्को करोगे कि मैं मीठा मीठा साथ स्टूडेंट बन जाऊँ ना, मैं स्टूडेंट दे कन फड़ा के लितर मारना होना मा, एक गल याद रखनी है। इसीलिए आपको उसूली तौर पर चाहिए था कि अगर आप वाकई रिसर्चर हैं, अगर आप वाकई रिसर्चर हैं तो आपको चाहिए था कि रिसर्च बेस्ड आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर अपनी राय का इजहार करते। अगर आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मेरे सामने ये बात कर सकें कि मिर्जा कादियानी के बारे में आपकी राय क्या है, तो उसके अलावा आप मेरे सामने ये बात कैसे कर सकते हैं? आप मेरे साथ ये जो मुकाबलाबाजी और मुसाबकतबाजी कर कैसे सकते हैं? लिहाजा मुझे पता तो चले कि जिस बंदे को मैंने जवाब देने हैं उसको जवाब मैंने किस तकनीक के ऊपर देने हैं, याद रखना है। तो आज याद रखें, नाम बदलने से, तकनीक बदलने से और इसी तरीके से तरीका वारदात बदलने से जुर्म बदल नहीं जाता, जुर्म ही रहता है।
आप किसी आदमी को आपकी जुबान से मुझे पता चल गया था जब आपकी जुर्रत और जसारत मैंने देखी थी कि आपने अल्लाह के ऊपर ब्लफ करने का इल्जाम लगाया, मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि ये जुर्रत किसी कादियानी खून के अंदर ही हो सकती है, ये किसी मुसलमान के अंदर ये हिम्मत नहीं है। वो 50 बार इस बात को बोलते हुए अपने ईमान की फिक्र करेगा, मगर जो जुर्रत जसारत और जो दीदा दलेरी और जो आप में नंग धड़ंग और जो आप में जनाब इसी तरीके से बेरारवी और बेपरवाही और इसी तरीके से रूगर्दानी और इसी तरीके से सीना जोरी और इसी तरीके से आपके अंदर जनाब बेदली मैंने देखी, उससे मुझे ये चीज पता चल गई कि ये खादियानी खून के अंदर और किसी अहमदी तरबियत के अंदर ये बात हो सकती है कि वो अल्लाह के बारे में ये जुमला बोले। जब मैंने उसी उसूल को आपके ऊपर पलटाया तो फटाफट 2 आयतें पेश करके कहा अल यौमा अकमलतु लकुम। मैंने कहा भाई क्या बात कर रहे हो, बनी आदम से अगर जारी होनी है तो बनी आदम तो आनी है क़यामत के लिए। अल यौमा अकमलतु लकुम दीना, अल यौमा अलियौमा अलियौमा। ओ भाई मिर्जा कादियानी के ऊपर पहले राय दो ताकि मुझे पता तो चले कि जो इस टोपी बुरके के नीचे छुप के बंदा बैठा हुआ है उसका अपना कीदा क्या है। आज मर्दइयों के ये दिन आ चुके हुए हैं कि जनाब मुसलमानों से बात करने के लिए और डिबेट के ऊपर बात करने के लिए उन लोगों की हालत ये हो चुकी हुई है कि उनको बुरके ओढ़कर और मुखन्नसियत को इख्तियार करके अपने आप को न्यूट्रल के तौर पर पेश करके अंदर घुस के ये चापलूसियां करने की कोशिश पड़ रही है। याद रखें इस बंदे ने अपना नाम मोहम्मद और कलमा सामने सिर्फ इसलिए लगाया है कि मुसलमानों को यह धोखा दे सके कि जब फ्रेम के अंदर आऊं और रिकॉर्डिंग हो या इसी तरीके से कई कादियानी इसको आगे लेकर चलें तो बताएं कि देखो मुसलमान ने बड़ा प्यार से सवाल पूछा, मुसलमान ने हाथ हल्का रखा और तसल्ली से सुकून से जवाब दिया, मुसलमानों के पास शायद कोई जवाब नहीं बन सका। तो याद रखें मैं कभी भी नजरियाती जंग लड़ने का सिर्फ कायल नहीं हूं, मैं अखलाकी और नफसियाती जंग लड़ने का भी कायल हूं ताकि पब्लिक को यह मैसेज दिया जा सके कि कादियानियत के अंदर यह दमखम नहीं रहा कि सामने सीना ठोक के मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तख्ती लगाकर और खुद को मिर्जा कादियानी की जमात से कहकर मुसलमानों के सामने आकर डंके की चोट पर कह सके आओ हम अपने अकायद को साबित करते हैं। अब इनके ऊपर इतने बुरे दिन आ चुके हुए हैं कि इनको ये अकीदे छुपाकर मिर्जा कादियानी को साइड पर रखकर वो कनाडा का हादसाती बच्चा अंसर रजा भी जनाब कैप्टन के नक चुंगलियां फेरदा सी पिया ते दाढ़ी खुजांदा हुआ अपने चैनल के ऊपर वीडियो डालकर कहता है ओ अहमदियो ओ आज के मुरब्बियों प्लीज कभी भी जब मुसलमानों के सामने जाओ तो रूहानी खजाइन का मुतालबा ना करना, ये तुम्हारी मंजी चौक के अंदर ऐसी ठोकेंगे कि उसके बाद चाहे 5 बंदे एक साथ चढ़े चूं चूं की आवाजें नहीं आएंगी। लो तो आंसर रजाओ पे अजे जब जना कैप पहन के कादियानी मुरब्बियों ने रूहानी खजाइन से मुंह मोड़ लिया, रूहानी खजाइन के ऊपर वो बासी पकौड़े तलकर नहीं पब्लिक को बेचते, आज इन्होंने ये तरीका अपनाया कि अपने नाम के साथ मोहम्मद लगाकर लोगों के ऊपर कलमा लगाकर और इसी तरीके से रिसर्च का ढकोसला और नाम लेकर मुसलमानों की ब्रॉड में घुसकर बड़ी मासूमियत के साथ सवाल पूछते हैं। आए हमें समझ नहीं आ रही, कुरान से तो यूं लग रहा है। तुम्हारा कुरान से ताल्लुक क्या है, तुम्हारा इस्लाम से ताल्लुक क्या है? पहले साबित करो कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में तुम्हारी राय क्या है। रिसर्च साहब यहां आकर हमारे ऊपर तो दीदा दलेरी से हुक्म लगा रहे हैं, मुसलमानों की ब्रॉड पर चढ़कर मुसलमानों को ललकारने की बात तो करते हैं, मगर अजीब तासुर है कि मिर्जा कादियानी के बारे में राय देते हुए इनके पैरों में लफ्जिश आ गई, इनकी आंखें मंडलाने लगी, इनके बाल झड़ने लगे, इनके दांत कपकपाने लगे, कानों से रू रू की आवाजें आने लगी, मसामों से पानी छलकने लगा, रीढ़ की हड्डी झुकने लगी, गुर्दों के अंदर जनाब पथरी आ गई और इसी तरीके से जनाब आवाज लटखड़ाने लगी। सवाल यह था, बोलो सुभान अल्लाह, सवाल ये था कि मिर्जा कादियानी के बारे में राय पेश करनी है, अपनी राय, और ये भी बोला कि अगर मिर्जा कादियानी के बारे में अगर राय पेश कर दें, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में अच्छी या बुरी राय पेश करें, खुदा की कसम कुरान और सुन्ना की बुनियाद पर बात करूंगा, मिर्जा कादियानी की तरफ आपको नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कादियानियत को अपनी कब्र और कफन और तदफीन नजर आती है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों की तरफ जब उनको लेकर जाया जाता है, अफसोस की बात यह है कि आज हमारे सामने वो मुरब्बी नहीं आते। अफसोस की बात और दुख की बात तो यह है कि आज हमारे सामने इनके एक्सपर्ट्स और इनके रिसर्चर्स और इनके डिबेटर्स नहीं आते। हमने बड़े नाम सुने थे, MTA के ऊपर जनाब ये हो गया, टिकटॉक के ऊपर ये हो गया, और जनाब इस तरीके से जनाब बड़े यहाँ पर जाहो जलाल वाले मुरब्बी और स्पीकर मौजूद हैं, कादरुल लिसान मौजूद हैं, बड़े जनाब दलाइल की रोशनी के अंदर बातें करते हैं, मगर आज जब हम अपने सामने इन नौजवानों को इस तरह के टोपी बुरके के अंदर छुपकर इस तरीके से कॉस्मेटिकल और इसी तरीके से आर्टिफिशियल किस्म के मेकअप करके और मल्टीपल किस्म के फिल्टर्स यूज करके
मुसलमानों की ब्रॉड में घुसकर ये फितना अंगेजी और जनाब इसी तरीके से इंतशार और इफ्तराक फैलाने की कोशिश और काविश करते हुए देखते हैं, हम यकीन करें गम में डूब जाते हैं और हमें दुख होता है कि नौजवानों को इन्होंने किस धंधे के ऊपर लगा दिया। आज मुरब्बी पीछे बैठकर अपनी ब्रॉडों के अंदर तो बड़के मारता है। हमारा चैलेंज है होस्ट टू होस्ट 7 लोगों का नाम लेकर मैंने कहा होस्ट टू होस्ट हमारे सामने आओ, अपने इन चेलों चाटों को छोड़ना भेज दो, इनको भेजना छोड़ दो। हमारे सामने व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर भी ये जनाब को जर्मनी का आता था, मैं हाफिज़े कुरान हूं, मैं जनाब अहमदियत की तरफ माइल हो रहा हूं, प्लीज मेरी रहनुमाई कर दें। मुझे ऑडियो भेजकर कहता है इस बारे में बात करें। मैंने उसका जवाब एक मुसलमान भाई समझ के बड़े सुकून और एहतराम और अदब और सलीके के साथ दिया। वो ऑडियो 1 हफ्ते के बाद आजम सैफी यूज करके उसके ऊपर मेरे ऊपर जरा कर रहा हो। आज तक चैलेंज किया हुआ है, किसी माँ ने वो अगर बच्चा जने और किसी कादियानी मर्द के खुशियों में पानी मौजूद है और किसी कादियानी औरत के पेट के अंदर बतन और रहम मौजूद है कि जिसके मिलाप से कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो 20-25 साल तक सांस ले जाए और उसके अंदर होशो हवास रहे, कायम दायम हो और उसने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों का मुताला किया हो और अपने अकायद पर कुरान और सुन्नत से दलील रखने का दावा करता हो। टिकटॉक के मैदान के अंदर अल्लाह के हुक्म से हम लोग मौजूद हैं। जिस दिन किसी के अंदर दमखम हुआ, जिस दिन किसी के अंदर ये तुखम मौजूद हुआ, जिसके पित्ते के अंदर ये पानी हुआ, जिसके तिलों में तेल हुआ, जिसकी खोपड़ी में दिमाग हुआ, जिसकी पसलियों में दिल हुआ और जिसके घुटनों में मिख हुई और जिसके पांव के अंदर वजन हुआ, वो हमारे सामने मैदान के अंदर आकर हमसे बात कर जाए। इन बच्चों बचूड़ों को भेजते हो, खुदा की कसम ये मेरी दलील के नहीं, मेरी एक सांस की मार है। खुदा की कसम ये मेरे तसलसल की मार है, मेरे अंदाजे तखातुब की मार है, मेरे अल्फाज और मेरी उस कितार की मार है जो अल्लाह के हुक्म से मैं इनके सामने पेश करता हूं। और ये दमखम नहीं ला सकते कि दूसरी सांस ले जाएं। इनको लगता है आज ये कहते हैं माइक यूज कर रहा है, उस बेचारे को ये नहीं पता कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की उन सलाहियत और कुव्वत गोयाई से बात कर रहा हूं जिसके बाद इनमें ये दमखम नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज इन बच्चों बचूंगड़ों को, इन छोटों को, इन बेचारे मैं कहता हूं ये कोलैटरल डैमेज में मारे जाएंगे। कोलैटरल डैमेज में अगर किसी के अंदर दमखम है तो वो मैदान के अंदर निकले। कुरान और सुन्ना की बुनियाद पर बात करना चाहता है, कुरान और सुन्ना की बुनियाद पर बात करेंगे। मगर सिर्फ इस भाई से एक मुतालबा किया, इस बेचारे से, छोटे से, मैं तो इसको सुना भी नहीं रहा हूं, मैं ये सारी चीजें उनको सुना रहा हूं जो अपनी खुडों के अंदर बैठकर इस तरह के रेठे और चाबी वाले बिल्ले और चूहे छोड़ते हैं। जाके मुसलमानों की ब्रॉड पर आपने जाके ये छुछुंदरपंती करनी है कि आमिर हक बेचारा शरीफ से बैठा है, मासूम क्यूट सा कुजू कू पाला पाला सा बच्चा सुकून से बैठा हुआ है। जाके जनाब ओदा अंदर रुद्र रूप उसका जगाना है, उसको जाके चार्ज करना है और उसको बताना है कि दोबारा वो अंदाज अपनाए जिसके बाद फिर इनका नेशनल अमीर लेटर पैड के ऊपर लिख कर कहता है खुदा दा ना जे 2 हाथ जुड़े ने आमिर हक दे नाल गल ना करना, इहदे सामने ना जाना। लिहाजा ये लोग इस तरह के बेचारे छोटे छोटे बच्चों को भेजते हैं, अनाड़ियों को भेजते हैं जो आके ये टेक्निक लगाते हैं कि जनाब हम इनकी ब्रॉडों पर जाकर खुद को नॉन मुस्लिम अपना मुसलमान के तौर पर प्रेजेंट करेंगे, अपने आप को नॉन अहमदी के तौर पर प्रेजेंट करेंगे और पब्लिक को जाकर ये कहेंगे जनाब देखा हमने सवाल पूछा। ये भूल जाते हैं कि आमिर हक अपने मुसलमानों से कितनी मोहब्बत करता है। ये भूल जाते हैं कि आमिर हक जब अपने उस झुरमट में बैठा होता है कि जहां मुसलमान ही मुसलमान हों, वो अपने शील्ड्स को डाउन करके बैठता है, वो अपने आप को बड़े सुकून से बैठता है, वो एक दूसरे के इख्तलाफ और एक दूसरे की अपनी बात को बड़ी खंदा पेशानी से बर्दाश्त करता है। इस टाइम के ऊपर किसी ऐसे कादियानी को अंदर भेजो जो जाकर मुसलमानों के अंदर दरार डालने की कोशिश करे और जब आमिर हक अपना रुद्र रूप दिखाए तो कहने वाले ये कह सके यार ये तो मुसलमान भाई था, फलाना था। आज राय मांग रहा हूं, राय, सिर्फ ये बात मांगी है। ये बंदा अभी कहे, इस बंदे को बोलने का मौका मैंने को 75 बार दिया, मगर मुझे समझ आ गई कि ये वो कुत्ते की दुम है जो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, बल्कि ये वो नहीं है बेचारा। ये बेसिकली इसको टेढ़ा करके भेजा गया है, इसको टेढ़ा करके भेजा गया है, ये बेचारा वो नहीं है और इसको भेजा इस बुनियाद पर गया है। ये पहले भी मुझे याद पड़ रहा है, एक बार एक ब्रॉड के ऊपर आया था, उस वक्त भी जब इसको मैंने धरा था, ये उस वक्त भी शायद फटाफट निकल गया था। मुझे याद पड़ रहा है, ये बात मुझे याद आ रही है, ये टेक्निक। मगर उस वक्त भी इसको मैंने समझाया था, मैंने कहा सामना करना है खम ठोक के। मैं कहता हूं कादियानियों से ज्यादा गैरतमंद मैंने हिंदू कौम को पाया है। हिंदू कौम को, मेरी हिंदुओं के साथ डिबेट होती है, यकीन करो उनके पल्ले दलील की बुनियाद पर कुछ भी नहीं है।
अपनी वेदास को रिजेक्ट करते हैं, अपनी किताबों को रिजेक्ट करते हैं, मगर हिंदू मैदान के अंदर निकलता है। मैं कादियानियों को हिंदुओं से भी बदतर हालत में पाता हूं और बेचारा ज़बू हाली और तनज़ुली के अंदर पाता हूं कि इनके पित्तों के अंदर इतना पानी नहीं है कि मुसलमानों के सामने खम ठोक कर ये कह सके कि हम कादियानी या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को ऑन करते हैं। यकीन करें, मैंने हिंदुओं को इनसे बेहतर पाया है। हिंदुओं के खुदाओं के ऊपर एतराज़ात होते हैं, उनकी किताबों पर एतराज़ात होते हैं, वो मैदान के अंदर निकलते हैं, मगर अहमदियों की हालत इतनी पतली हो चुकी हुई है कि इन बेचारों ने अपने आप को अहमदी कहना छोड़ दिया है। मैं उससे पूछ रहा हूँ आप अहमदी हैं, मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, इनकार नहीं कर रहा, इनकार नहीं कर रहा, मगर जब मैंने पूछा आप अहमदी हैं, मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ। आप कादियानी, अपना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में क्या कहते हैं, मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा जी, किस चीज पे आ जाएं, सवाइम बैनना व बैनकुम पे आ जाएं, जो हम में तुमसे तुम में यकसा है। और पहले अपना इस्लाम तो साबित कर मेरा भाई, मिर्जा कादियानी के बारे में राय तो दे। सवाइम बैनना व बैनकुम तो अहले किताब के साथ भी होता था, अहले किताब के साथ क्या है सवाइम बैनना व बैनकुम। ये अगर ये मुसलमान है, खुद सोचें, अपनी इस आयत को इसने पेश किया मेरे सामने, सवाइम बैनना व बैनकुम, ये तो अहले किताब के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, ये खुद को अहले किताब मानता है, ईसाई यहूदी मानता है कैटेगरी में कादियानी, मुसलमान के सामने पेश कर रहा है सवाइम बैनना व बैनकुम, वो तो अहले किताब को कहा गया था। मुसलमान के सामने सवाइम बैनना व बैनकुम कुरान ने नहीं पेश किया। ये जो आयत आपने पेश की है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64, तो ये याद रख लें, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर आपकी जितनी फिलॉसफी है, इसी तरीके से आपकी जितनी रिसर्च है, तब तक पब्लिक के सामने नहीं आ सकती जब तक आप इस दरवाजे से नहीं गुजरेंगे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में आपकी राय क्या है। जब तक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में राय नहीं आती, हम इस मौजू के ऊपर आगे नहीं चल सकते। मैंने पहले बताया आपको, कोई एक आयत कत्युद दलाला, मैंने अपना चैलेंज रखा हुआ है, कत्युद दलाला आयत आपने पेश करनी है जिस आयत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इजराए नबूवत साबित होती हो। जो आयत पेश की आयत नंबर 35, मैंने स्टार्ट में कहा अगर इंसान होता और इस एजेंडे के ऊपर ना आया होता, अगर ये अहमदियत और कादियानियत में सना होता, तो ये स्टार्ट के अंदर जब मैंने कहा यार इस पर 75 बात हो चुकी है, ये मेरे सामने तबाह आजमाई के लिए आया था कि जनाब मैं जाके उधर इधर उधर करांगा तो जनाब मेरा तरीकाकार ये बन जाएगा कि मैं ले भी आया रिकॉर्डिंग करके टोटे पकड़ के जाके जनाब कादियानी जमात के सामने पेश करूंगा। ओए हो टोटे भी जाके पेश कर दो, उनके सामने इतना थप्पड़ नहीं है कि वो मेरे सामने आ सकें। और ये याद रखना, जब भी मैं किसी दलील के ऊपर तबसरा करता हूं, आप ये जान लो कादियानी अगर को सुन रहा है, अगली दफा उस दलील के ऊपर मेरा तबसरा कुछ और होता है, तो ये याद रख लेना। अगर इनको ये कोई जोम है कि मुझसे को बात निकलवा कर उसकी रिकॉर्डिंग करके अपने पास रखेंगे, लिहाजा अगली दफा जब आमिर आका है तो जनाब यही पेश करेगा, तो उसके जवाब तैयार कर लें अल्लाह के हुक्म से, अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह बितौफीकिल्लाह। जिस दलील के ऊपर आज तबसरा करूंगा, उस दलील के ऊपर जब किसी कादियानी के सामने बात होगी, वो तबसरा ही नहीं होगा, तबसरा मुख्तलिफ ओयत का होगा, अल्लाह के हुक्म से, मेरा अपना कमाल नहीं है। दालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा। आगे बढ़ते हैं। इसने सूरह आराफ की आयत नंबर 35 पेश की। ओ भाई, उस आयत के फार्मूला के मुताबिक बड़े शद्दोमत के साथ कहते हैं, इसकी जुर्रत चेक करें, कहता है अल्लाह ने फिर ब्लफ मारा है ना, उज़बिल्लाह, ये जुमला बोला। जब ये जुमला बोला ना, तो मुझे पता चल गया कि ये जुर्रत किसी अहमदी और कादियानी के अंदर ही हो सकती है, उसके अलावा ये जुर्रत मुसलमान के अंदर नहीं होती। मुसलमान तो अपने ईमान की खातिर जो है ना, वो कई ऐसे अल्फाज कहने से भी रुक जाता है जो अल्फाज खुदा न खास्ता अदब और अखलाक के दायरे से बाहर फलांगते हों, वो अल्फाज भी चाहे कि खुदा न खास्ता इल्ज़ाम तराशी कर दे। खैर बहरहाल, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, कोई शक नहीं है कि उसके बाद इन्होंने कहा कि ये फिर तासुर मिल रहा है, इससे ये तासुर मिल रहा है। तो ये किसी कादियानी या अहमदी के अंदर ये जुर्रत होती है, मुसलमान के अंदर ये जुर्रत नहीं होती है। आयत नंबर 35 जब इन्होंने पेश की तो बड़े जोरों शोर के साथ ये बात की, बड़े जोरों शोर के साथ। आयत नंबर 35 ये कहती है जनाब बनी आदम जब तक आते रहेंगे, ये तो अल्लाह ताला ने कहा है कि बनी आदम जब तक आएंगे तो रसूल आते रहेंगे। और मैंने कहा जब बनी आदम आते रहेंगे तो रसूल आएंगे, तो वे क़यामत तक आने चाहिए। ये क्या बात हुई कि बनी आदम के अंदर तो तशरीह नबूवत आती है, तो जब क़यामत तक लोग आए तो वो तशरीह नबूवत को खत्म कर दो। तो साथ ही कौन सी आयत पेश कर दी? सूरह मायदा की आयत नंबर 3 पेश कर दीजिए। वहां से ये पता चलता है, क्या पता चलता है? दीन मुकम्मल हो गया। और भाई दीन मुकम्मल हुआ है, ये कहां से निकल आया कि शरीयत मुकम्मल हो गई है? या तो दो चीजें कहो कि दीन मुकम्मल और शरीयत मुकम्मल होना एक ही चीज है, एक ही चीज है, दोनों बोलो नहीं साबित कर सकते। इसी तरीके से सूरह आराफ की आयत नंबर 35 जो है जब इन्होंने पेश किया, उसमें कैटेगोरिकल स्टेटमेंट ये निकल रही है कि बनी आदम के अंदर रसूल आते हैं। अगर ये फार्मूला लेना है कि उस आयत से इजराए नबूवत साबित होती है और बनी आदम जब तक आती रहेगी तब तक रसूल आते रहेंगे, ये अकीदा है, तो फिर वो रसूल उसी तरह आते रहेंगे जिस तरह वो पहले आते रहे। जब आप ये मानते हो तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि क़यामत तक के लिए तशरीह नबूवत, जब तक इंसानियत है तब तक तशरीह नबूवत जारी
अगर जाएगी। इस चीज की क्या जरूरत जमात खत्म हो कादियानी गई का है, ये अकीदा है कि अगर आप इस लोग चीज की ये जरूरत मानते ही हो? खत्म हो गई फिर है तो फटाफट उसको जाके बताने का जनाब मकसद सूरह क्या है? मायदा की आयत नंबर 3 पेश करना शुरू कर दी, अल यौम अकमलतु इस लकुम। बात दोनों का देखिए, क्या इस ताल्लुक बात है? से तो मैं इससे आपको पता एग्री चलता है करता कि हूँ इनके कि भाई इस्तेदलाल के मुताबिक हजरत कुरान आदम के की अंदर शख्सियत ऐसा की बात है, कॉन्ट्रडिक्शन है जिसकी लेकिन कुरान रिकंसाइलेशन मजीद में नहीं हो लाने का सकती। मकसद क्या है कि अगर भेजनी कुरान नहीं में है। तजाद का साबित करना ये खुद कुरान को नाउज बिल्ला नलिफाई कर देता है। नाउज बिल्ला इनके अकीदे के मुताबिक और इनकी तहकीक के मुताबिक कि कुरान के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है। यही हम चीजें इनको समझा रहे होते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कुरान से जो इस्तदलालात किए हैं वो कुरान में सरापा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करने के मुतरादिफ हैं। लिहाजा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कुरान के ऊपर ईमान नहीं रखेगा, बल्कि जो अकीदा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने पेश किया अगर उसके अकॉर्डिंग आपने लेकर चलना है तो कुरान नाउज बिल्ला अल्लाह की किताब साबित नहीं बल्कि इसके बरखिलाफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मिर्जा कादियानी की जो टेक्निक थी वो सरापा तजाद था, मुजस्सम मुतजाद मजमुआ था। लिहाजा मिर्जा कादियानी का जब आप मुताला करते हैं तो आपको पता चलता है कि जगह जगह तजाद है। लिहाजा एक एक दावा जो उसने पेश किया उसमें तजाद नजर आता है। लिहाजा जिस चीज के अंदर मुतजाद अकायद हो, नजरियात हों, वो कभी भी कुरान का फहम हासिल नहीं कर सकेगा। कुरान सलीस तरीके से पूरे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आपको 3 मौजूआत समझाता है। ये मैंने बार बार बात की, जो मकसद है इस चीज का दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, कुरान सबसे पहले जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करता है वो तौहीद है। मुशरिकीन मक्का जो अव्वल या उम्मीयीन या अरब जो थे, जो पहले मुखातिब थे, इमीडिएट ऑडियंस थी, उनके अंदर तौहीद का मसला जो है वो गड़बड़ हो चुका हुआ था। उन्होंने तौहीद और शिर्क को आपस में मिक्स कर लिया हुआ था। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इशारा दिया था सूरह यूसुफ के अंदर भी कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि मुशरिकीन अरब जो थे वो अल्लाह पर तो ईमान रखते थे। अल्लाह का जिक्र भी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान से पहले आपको मिलता है कई ऐसे सोर्सेज के अंदर। मिसाल के तौर पे किताब है किताबुल असनाम इमाम कुलैबी की, उसमें जिक्र मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी वो लोग अल्लाह का जिक्र करते थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे। यकीनन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम में से थे वो लोग। इस्माइल अलैहिस्सलाम की वहां पर शादी हुई थी, यमन से एक कबीला गया था, उन लोगों ने जाकर वहां शादी की, वो लोग बसे। बहरहाल ये डिटेल तलब है। अच्छा, तो वहां अरबों की जो कौम मौजूद थी वो अल्लाह से वाकिफ थे, लिहाजा तौहीद और शिर्क में चीजें गड़बड़ होना शुरू हो गई थी। निकल गया? बहुत शुक्रिया। जब तक मिर्जा कादियानी के ऊपर राय नहीं दोगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो पहला टॉपिक था तौहीद, ठीक है? आप लोगों को मौका देता हूं, सिर्फ इसको जल्दी से रख दूं। तौहीद टॉपिक है। मुशरिकीन मक्का के अंदर तौहीद के हवाले से गड़बड़ थी। तौहीद को डंके की चोट पे कुरान ने जगह जगह एक्सप्लेन किया है, पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। अकली दलाइल दिए, नकली दलाइल दिए, मंतकी दलाइल दिए, वजूदी दलाइल दिए, अखलाकी दलाइल दिए, समाजी दलाइल दिए, इज्तमाई दलाइल दिए, सियासी दलाइल दिए, यहां तक के ये दलील भी दी है कि तुम गुलामी तुम्हारे अंदर मौजूद है ना, स्लेवरी अरब के अंदर मौजूद थी। अल्लाह ताला ने कहा क्या ऐसा गुलाम बेहतर है कि जिसका एक आका हो या ऐसा गुलाम जिसका मुतअद्दिद आका हो? चेक करें, कुरान ने साइंटिफिक दलाइल, अकली दलाइल, मंतकी, फलसफी, अखलाकी, इज्तमाई, सियासी, कोई दलील नहीं छोड़ी तौहीद के ऊपर। इसी तरीके से क़यामत के ऊपर अल्लाह ताला ने हर तरह के दलाइल पेश किए हैं। अब तीसरा टॉपिक था नबूवत का। इमाम इब्न हज़म अल अंदलुसी जो हैं उन्होंने अल मिलल व नहल के अंदर लिखा है कि जिस तरह हिंदुओं के अंदर नबूवत का मामला जो है वो मशकूक हो चुका हुआ था, उनको नहीं पता चलता था कि नबी में फ़र्क कैसे करना है। उन्होंने अवतार का कॉन्सेप्ट ले लिया, ब्रह्म ऋषि का कॉन्सेप्ट ले लिया, ठीक है? तो उनमें फ़र्क नहीं रहा। लिहाजा इसी तरीके से अरब मुशरिकीन के यहाँ भी चूंकि नबूवत का एक लंबा तअत्तुल था, नबी नहीं आए इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद, जिसका जिक्र सूरह यासीन के अंदर मिलता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लितुनदिरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, कि तुम ऐसी कौम का इंतजार करो, डराओ कि जिनके आबाओ अजदाद को डराया नहीं गया था। अहमद इब्न हंबल अलैहिर्रहमा ने इस टाइम को फतरत के नाम से पुकारा है। फतरत कहते हैं किसी चीज में वैक्यूम हो जाना। वैक्यूम का मतलब यह है कि कोई ब्लैंक एरिया गुजरा है। तो अंबिया का सिलसिले में एक ब्लैंक एरिया गुजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद, और वो सिलसिले को पुर किया, उस वैक्यूम को, मेरे आकाए दो जहां फिदाहू अबी व उम्मी अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अला आलिही व असहाबी व अज़वाजी व अहले बैतिही व बारक वसल्लम ने उस वैक्यूम को पुर किया कुरान के आने के बाद। लिहाजा नबूवत के मनसब उनके लिए एक अजीब और गरीब चीज हो चुका था, स्ट्रेंज। इट वॉज टोटली आउट ऑफ सिलेबस सब्जेक्ट फॉर देम, अ प्रॉफिटहुड। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के मनसब को एक्सप्लेन करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान की आयात की रोशनी में उनको बताया कि उनको बताएं नबी कैसे आते थे, नबी क्यों आते थे, नबी कौन होते थे। जिसने डिटेल के अंदर इस टॉपिक को पढ़ना है, इब्न तैमिया अलैहिर्रहमा जो 8वीं सदी के इमाम है, उनकी किताब है अन-नबूवात। उस नबूवात किताब को आप पढ़ें,
مجھے نہیں پتا اردو کے اندر اویلیبل ہے کہ نہیں, پی ڈی ایف میں بہرحال عربک میں اویلیبل ہے. اس کتاب کو پڑھیں, اس میں نبوت کے کانسیپٹ کو ایکسپلین کر کے قرآن کی روشنی سمجھایا ہے کہ اللہ نے کیوں منصب نبوت کو سمجھایا تھا, کہ نبی آتے ہیں تو وہ کس طریقے پر معاملہ کرتے ہیں اور ان کی ڈیٹیلنگ کیا ہوتی ہے. تو قرآن کا جو تیسرا سبجیکٹ تھا کانسیپٹ آف پروفٹہوڈ کا, یہ وجہ ہے, یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے نا وہ وجہ کیا ہے, میں نے تیسری بار یہ چوتھی بار اب بتا رہا ہوں. یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ما قبل انبیاء کا ذکر کیا. پوائنٹ نمبر 1, کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے یا عرب جو تھے وہ نبوت کے کانسیپٹ سے نا آشنا ہو چکے ہوئے تھے, اجنبی ہو چکا ہوا تھا یہ کانسیپٹ. یہود کے ہاں اس کے اشارے ملتے تھے مگر اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا مشرکین کے ہاں سے کہ یہ نبی کوئی نہیں ہوتا, اللہ کیسے بات نہیں, یہ نہیں چکر ہوتا, اگر کرنا ہوتا تو یہ اس کی بیٹیاں ہیں, یہ اس کے بیٹے ہیں, یہ اس طرح اپنی طرف سے اس طرح اس کانسیپٹ کو مشکوک کر دیتے تھے. دوسری بڑی وجہ کہ پچھلے انبیاء کا ذکر کرنا اور یہ بتانا کہ وہ انبیاء کیسے آتے تھے, کیوں آتے تھے, ان کا مقصد کیا تھا, ان کی قوموں نے کیسے ریئیکٹ کیا اور ان کی قوموں پر اللہ نے کیسے ریئیکٹ کیا. یہ چیزیں اس لیے بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت کے اندر یہ میثاق موجود تھا کہ جب وہ نبی و رسول آئے گا جو کہ تصدیق کرے گا اپنے پہلے انبیاء کی, مصدقا لما معکم, ٹھیک ہے, ایسی چیز کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے, اپنوں سے پہلے ہے. یہ پتہ چل جاتا ہے اس سے کہ اللہ کے رسول کے معاملے کے اندر پچھلے انبیاء کا ذکر کیوں آپ کو ملتا ہے, کیونکہ تصدیق کرنا ضروری تھی. بہت شکریہ جناب, آپ لوگ بات کریں. یہ بھائی جہاں بھی مجھے نظر آئیں گے اور اگر میں اویلیبل ہوا اور یہ بات کرنا چاہیں گے تو ان کے ساتھ بات یہیں سے شروع ہوگی جب تک یہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتے. اچھا, ادھر اگر کوئی مرضیہ آ جاتا نا, وہ آ کے پوچھتا فرقہ بتائیں, پہلے فرقہ بتائیں, پہلے فرقہ بتائیں, تو قادیانیوں نے نیچے تالیاں مارنی تھی, واہ مربی صاحب, واہ واہ جناب, زندہ باد. یہ ہوئی نا بات, یہ ہوئی نا بات. اج آیا اونٹ پاڑ دے تھلے. اج دسی قادیانی نو پوچھیا کہ مرزا قادیانی تو حکم لا جے تو واقعی نہیں قادیانی تھے, وہ پھس گیا سی. بہت شکریہ جناب. ہاں, ساڈی واری چوں چوں کر دینے. عامر حق بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو, آپ نے یہ بہت زبردست طریقے سے پکڑا اس کو اور یہ ثابت کیا آج کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلمے کے بغیر جو تیسری چیز آپ کوئی بھی اسلام میں کرو گے آپ اسلام سے باہر ہو جاؤ گے. یہ آج ظاہر ہوا ہے اس بندے کے ساتھ. اس نے کلمہ بھی لگایا آئی ڈی پہ, نام بھی محمد لکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا نام لکھا, اور تیسری چیز اس میں جیسی ایڈ کرنا شروع کی. یہ ہمیں پتہ ہے اس کا, ان کی مکھی ہوا میں اڑ رہی ہو نا, وہ ہمیں پتہ چلتی ہے نمبر کے درمیان ہے. یہ تو پھر خود پورا کا پورا ہماری براڈ پہ آ گیا. تو بتائیے اگر کہہ دیتا نا کہ میں مرزا قادیانی کو یہ مانتا ہوں یا وہ مانتا ہوں, تو ہماری براڈ کا اصول یہ ہے کہ ادھر قرآن حدیث سے بات ہوتی ہے. اس بیچارے کا مرزا ایسے کھول کر عامر بھائی اس کو خیرادی کے لیے نہیں دیتا. یہ اتنی بات کروں گا. شکریہ جی سب بھائی. بات کر چکے تو اگر میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں, اگر کسی اور بھائی نے بات کرنی تو کر لیں, پھر میں بات کروں. سجاد بھائی ایک منٹ. عامر بھائی, ایک بندہ یہ نیچے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے جماعت قادیان کا, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے اوپر لے لوں. اچھا, یہ یاد رکھیں کہ جو بھی قادیانی جماعت سے آئے گا, میں 7 لوگوں کو چیلنج دے چکا ہوں جو ان کے بڑے مربی ہیں. ہوسٹ ٹو ہوسٹ اگر کسی نے 1 on 1 ڈیبیٹ کرنی ہے تو وہ 7 لوگوں میں سے ہوگی. ان کے علاوہ کسی سے 1 on 1 ڈیبیٹ نہیں. یہ جو ابھی ہوا ہے نا, یہ تو چھترول کہتا ہوں میں, تو چھترول ہر ایک کی ہوگی. جو مربی زنادقہ کی کیٹیگری میں آئے گا, پھڈے بازی میں, چھترول سب کی ہوگی. 1 on 1 جو علمی ڈیبیٹ ہے وہ 7 لوگوں کو میں نے چیلنج کیا ہوا ہے. اب ان کی مرضی ہے, یہ اگر آئیں گے تو اس کو ڈیبیٹ کا نام نہیں دیا جائے گا. ہاں البتہ اگر یہ سلیقے طریقے سے بات کرنا چاہتے ہیں, سلیقے طریقے سے سیکھنا سکھانا پوچھنا, سو بسم اللہ آپ لیں ان کو, ہم تو کسی سے روکتے ہی نہیں ہیں. آ جائیں, آ کے ہم ان سے بات کریں گے, ہم ان سے کچھ چیزیں پوچھ لیں گے, یہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے پوچھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. ہاں تو نہیں بھائی, اس بندے کو نہیں, یہ بندہ بار بار کہہ رہے ڈر گیا. عامر حق آپ سے ڈرے گا اس بے وقوف کو. یار ایک منٹ یار, خان صاحب ایک منٹ. عامر بھائی نے جو بات کی ہے اس بات کو سمجھیں. جو ڈیبیٹ ہے وہ جو بغیرتوں کو کیوں انہوں نے چھپا کے رکھا ہے, ان بے شرموں کو, ان کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے. آئے نا وہ میدان میں نکلیں. عامر بھائی بیٹھے ہوئے موجود ہیں, اگر یہ آتا ہے اوپر آ کے یہ بار بار, میں نے اس کو 10 دفعہ کال ڈالی ہے, یہ صرف کمنٹ میں مزدوری کرنے والا ہے, اس میں وہ تپڑ اور وہ دم خم نہیں ہے. یہ جا کے اپنے ان بڑے وہ مربیوں سے, ان باپوں سے پوچھے کہ وہ عامر حق بھائی کا سامنا کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں, ان کی کیا اوقات ہے. میں نے 10 دفعہ اس کو کال ڈالی ہے, اگر اس میں دم خم ہوتا یہ کال اٹھا کے اوپر آتا.
तो ये सिर्फ टाइम वेस्टर है जी। माजत आमिर भाई आपको बात करने लगे। हाँ नहीं, वो फारसी भाई बात करने लगे थे। मैं तो सिर्फ ये चीज़ कह रहा हूँ कि देखें, वो नादिर बेचारा गलती कर बैठा था ना एक बार लाइव ब्रॉड में बैठ के, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। वो लाइव गलती कर बैठा, आमिर हक का वो हाल करूंगा जो इससे पहले मैंने किसी का नहीं किया। मैंने कहनू कहा कल करे सो आज, आज करे सो अब, दबा दब एनू नप, एनू क्या हुने बह। हमने जनाब सबको नीचे उतारा। वो पहले कहता है अभी मैं देखता हूँ, बाद में आता हूँ, मगर लोग जाते रहे पीछे। उन्होंने कहा वो बह गया है, निकलो बाहर। तो फिर आ गया था। ओदी जड़ी शतरोल हुई है वो पब्लिक के सामने में। अगर वो इज्जत से बात करता तो शायद बड़ी हैवी किस्म की गुफ्तगू मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि होती, मगर मुझे बाद में पता चला कि इस बंदे की रत्ती बराबर भी औकात और हैसियत इस एतबार से ही है सिर्फ कि जमात ने इसको कंधों पर उठाया हुआ है। तो जिसने जिस जमात को कंधों पे उठाया हुआ है ना, उसको काबू करने के चक्कर में पहले ये धौन तू हथ पाना पैंदा है। इसी तरीके से सलीम मीर है, उसके सामने जाके कहे ना, अब जड़ा बच्चा बचूंगड़ा जड़ा थले कमेंट कर रहा वे, जिन्होंने बड़ी शहरी जड़ी हुई है कि जनाब मैं भी जाके को दो हाथ करने ने, वो सलीम कुकड़ से जाके कहे ना जरा कि आमिर हक से 5 साल हो गया तू भागा हुआ है, उसके पास सारी की सारी प्रेजेंटेशन चैट मौजूद है तुम्हारी, ठीक है, एक एक चीज का स्क्रीनशॉट मौजूद है, तो उससे बात कब करनी है? सलीम कुकड़ जैसा बंदा अगर फरार हो सकता है, जिसकी जुबान उसके जबड़ों में ठहरती नहीं है, तो फिर इन कादियानियों को समझ लेना चाहिए कि कोई तो वजह होगी ना वो कुकड़ नसे आवे। क्योंकि उस कुकड़ आजम सैफी भाग गया। आजम सैफी को मैंने व्हाट्सएप के ऊपर कॉल की, गलती से कॉल उठा ली, वो भी रिकॉर्डिंग मौजूद है टिकटॉक के ऊपर, कई लोगों ने सुनी है। कहता है मैं करता हूं, मैं अभी बच्चों के साथ हूं, रात का टाइम है, बच्चे सो रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। तो अपनी ब्रॉड लगा के बैठा हुआ था उसको पता नहीं था कि ये लाइव बैठ के मुझे व्हाट्सएप कॉल कर रहा है। कॉल पे कहता है मैं बच्चों के सब बच्चे सो रहे हैं, जरा मैं ना थोड़ा बिजी हूं, बाद में करता हूं बात आपसे, बाद में करता हूं। मैंने कहा यार वो चैलेंज हुआ था, उसका क्या करना है, बाद में करता हूं, बाद में करता हूं। बाद में दोस्तों ने बताया तो ब्रॉड लगा के बैठा हुआ है, लाइव बैठा है। मैंने फिर कॉल ठोकी, कॉल ना उठाए, फिर ऑडियो मैसेज पे आ गया, मैंने ऑडियो मैसेज भेजे। उसके बाद ये दिन है, मैंने उसको कहा हुआ है आजम सैफी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कॉल उठाओ, कॉल पे बात करो। वो दिन है, आज का दिन है, उस बंदे ने कोई रिप्लाई नहीं किया। सलीम कुकड़ है, 1 मिनट का रिप्लाई नहीं उस बंदे ने मुझे किया ही नहीं है, नस गया है हाथ छिड़ा के। तो ये हकीकत है इनकी। और ये चमूने आके जो 3 में ना 13 में नीचे बैठ के मेरे जो है ना, वो बस यही कहूंगा, इधर नीचे बैठ के, ठीक है 10 इंच नीचे गाली नहीं, देखा मैं गाली नहीं दूंगा हवाला, ये मेरे 10 इंच नीचे बैठ के इधर आके कमेंट करते हैं और आकर छलांगे डालते हैं कि जनाब आके हमने डिबेट करनी है। ओए अपनी मामा ते तरस खाओ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया अमर भाई। अमर जी भाई फारसी भाई आपको बात करने लगे। चार्ज कर दूं जी भाइयों, किसी और ने को बात करनी है, मैंने वो कर ले। नहीं तो कुछ नहीं, जी बहुत फारसी भाई बात करें, आप बात करें। इकट्ठा सा अर्ज करें, ऐसी कोई बात नहीं है जी, करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम। कादियानी साहब ने जिस आयत की तरफ जो है ना बात करने की कोशिश की ना, पहली बात यह कादियानी साहब ये नोट कर लें, आप सुन रहे होंगे या आप ना सुन रहे होंगे तो काना कान आपने यकीनन नीचे छोड़ा हुआ है जो सुन रहा होगा, क्योंकि जिस मरबियों ने आपको भेजा है ना, वो यकीनन 1-2 और भी जो है उनके मौजूद होंगे इस तरह के, तो सुन लें कान खोल कर और पैगाम पहुंचा दें कि जब सवाल करते हैं ना कि जी सवाल मैंने करना है, तो उसको समझ लें जो सवाल करता है ना वो जवाब लेता है, पसंद हो या ना हो, उसने एक सवाल पर जवाब लेना और बस, दूसरी बात कोई नहीं है। डिबेट और सवाल करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो पहले इस बात को समझ लें, इतना समझ लें कि आप क्या कह रहे हैं। आते हैं सवाल करने के लिए और चल पड़ते हैं डिबेटें करने। डिबेट करनी है तो फिर अपने मरबियों को लाओ, जैसे अमर भाई ने कहा, दिन और वक्त तय करो, शराइत के साथ दावा पेश करो, जवाब दावा लो, डिबेट करो। ये तरीका नहीं है कि जी आगे किसी को कर दो, हाँ आगे को मुर्गा कर दो, खुद आओ मरबियों। अच्छा, दूसरी बात जो ये कादियानी साहब ने की है, स्वाइम बैनना व बैनकुम, क्या सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64 में इतना ही पढ़ा है, पूरी आयत नहीं पढ़ी? कुल या अय्युहल किताब
تعالوا الی کلمات سواء بیننا و بینکم، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. یہ نہیں پڑھا؟ بیننا و بینکم کی بات آپ کر رہے ہیں، تو قادیانی صاحب اگر اسی پر ہی آ جائیں، اسی پر ہی آ جائیں، تو اسی پر آ جائیں اور پہلے کیا کریں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ہم اس کے ساتھ کسی کو بالکل شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے. اسی بات پر آ جائیں. مرزا غلام قادیانی نے تو جو ہے الوہیت کا دعویٰ کیا ہوا ہے نا، بھیجو نا لعنت اس پر، کہو کہ وہ کافر ہے. کیوں نہیں کہا؟ اس آیت کے حکم کے تحت، جس آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ تم پیش کر رہے ہو، بیننا و بینکم، تو اس آیت کے حکم کے تحت تم نے کیوں تقریر میں شروع کر دیجیے گا. بیچ میں نہیں بول رہے ہیں، پھر شور شروع ہو جائے گا. بیچ میں نہیں بول رہے ہیں. فارسی بھائی کو بات کرنے دیں، ابھی آپ آپ کی کے ساتھ بات نہیں تقریر کروں ختم گا. ہو جائے، ان کی شروع ہو جانے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں کروں ایک گا آپ کے سیکنڈ. ساتھ. جی فارسی بھائی آپ مجھے پتہ ہے آپ کو درد ہو رہا ہے. اچھا، اسی آیت کے تحت جس آیت میں آپ نے یہ حصہ جو ہے آپ نے بیان کیا بیننا و بینکم، تو آگے جو ذکر ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائیں، تو اس حکم میں اسی آیت میں جو حکم ہے اس کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ اگلی لائن کیوں چھوڑ دی؟ وجہ کیونکہ آپ لوگوں نے مرزا غلام قادیانی کو رب بنایا ہوا ہے، جیسے کرسچنز نے بنایا، اور جیسے انہوں نے اپنے جو ان کے تھے ان کو جو ہے حلال اور حرام کے معاملے میں اس کی پوری تفصیل آگے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعالی. غلام قادیانی پر رائے دینی ہے آپ نے. فارسی بھائی کو بات مکمل کریں. دشمنی ہے جو آپ کو فارسی صاحب آپ بات مکمل کریں سنیں. یار، یہ ان کو ذرا چپ کرائیں ذرا. اب مسئلہ آپ کو یہ بنا کہ جب عامر حق بھائی نے آپ کو کہا نا کہ مرزا غلام قادیانی کے متعلق آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں، تو وہاں پر جو ہے کیا ہوا کہ آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں رہا کہ جو وہ بات کر رہے ہیں نا وہ اس آیت کے حکم میں ہے. ہاں، یہ آپ کی کھوپڑی میں نہیں نا بات آئی، کیونکہ مربی نے یہ آپ کو بتایا کوئی نہیں نا پرچی میں کہ بیننا و بینکم سے آگے بھی کچھ موجود ہے اس آیت میں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 بیننا سے شروع ہوتی ہے، وہ بینکم پر ختم ہو جاتی ہے. آپ کی جہالت یہ ہے. اور آپ چلے یہاں کر دو ہمیں تقریریں اپنی سنانے. وہ جو آگے ذکر ہے نا، سن لیں اور سن لو تمہاری میں نے اتنی دیر بات سنی. ہلو، تمہاری تقریر میں نے بڑی دیر سنی. عامر بھائی کے ساتھ جو تم نے بات کی، میں نے سکون سے، عامر نے تقریر کی اور ابھی آپ تقریر کر رہے ہیں. سنیں نا، نہ سوال کرتے نہ سنتے تقریر. ہم نے کو دعوت کی. فارسی بھائی ایک سیکنڈ دیجیے گا. آخری بار آپ کو بتا رہا ہوں، عامر بھائی نے پھر آپ کو بخش دیا ہے. اب اگر آپ نے وہ معاملہ کیا تو میں آپ کو توڑ پہنچا کے آؤں گا. آپ کو وقت دیا ہے، آپ کو لیا اوپر، اسی لیے لیا کہ آپ سے بات کریں گے. فارسی صاحب کو بات مکمل کر لینے دیں، اس کے بعد آپ کو موقع دیتے ہیں. اب بیچ میں نہ بولیے گا. اچھا جی فارسی صاحب بات کریں. یہ قادیانیوں یہ کان کھول کر سن لو مربیوں، یہ جو کتاب اللہ ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کلام کا معجزہ جو ہے ہم ہر روز دیکھتے ہیں، ہر روز. آج بھی ہم نے دیکھا کہ تم قادیانیوں نے اس کلام کو استعمال کرنے کی کوشش کی اپنے مقصد کے لیے. بیننا و بینکم، اللہ وحدہ لا شریک کے کلام کا معجزہ دیکھو. اسی آیت میں آگے کیا ذکر ہے؟ تمہارا دروازہ پھر بند ہو گیا اسی آیت میں، کہ تم نے مرزا غلام قادیانی نے جو دعوے کیے ہیں الوہیت کے، کون سے؟ جو کہ اہل کتاب نے میں سے کرسچن نے جو اور یہودیوں نے جو دعویٰ کیا اور شرک کیا، مرزا غلام قادیانی نے وہی تو کیا. دیکھو اللہ کا کلام کیسے تمہیں روک رہا ہے. یہ ہے معجزہ اللہ کے کلام کا. یہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے اور اس سے عبرت حاصل کرو. قادیانیوں یہ دیکھ لو، تمہارے مربی جو بیٹھ کر سر جوڑ کر نہ تو کچھ سازش بنا کر آتے، دیکھو اللہ کے قرآن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو اللہ کا قرآن کیسے ان کو خاموش کر دیتا ہے.
ये आगे नहीं पढ़ सका क्योंकि इसको अंदाजा था, इनके मरबियों को पता था। इन्होंने, इसके मरबियों ने क्यों इसको पर्ची पकड़ाई जिसमें सिर्फ इन्होंने ये लिखा बैनना व बैनकुम? क्यों? उन्हें पता था कि उसके आगे वाले जो आयत मुकम्मल हो रही है ना, तो वहां पर पूरा दरवाजा बंद है। ये ऐसे बदबख्त है, इनके मरबी ने पता है कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने जो दावे किए हैं, अल्लाह का बेटा होने का दावा किया है, जो उलूहियत का दावा किया, फिर जो अहले किताब जिन जो पहला खातिब है इस आयत का, तो जो अहले किताब ने हरकतें की कौन सी, कि वो जो है लोगों को जो है कि हलाल अल्लाह के हलाल किए हुए को हराम और हराम किए हुए को हलाल जिन लोगों ने उनके लिए किया, उनको रब मान लिया उस वजह से कि उनकी वो बात मान ली। तो ये काम तो मिर्जा ने भी किया है। गैर महरम औरतों की तो सिर्फ एक मिसाल है कि उसने जो है हराम को हलाल किया है अपने लिए। तो मसला ये है कि यहाँ उन्हें पता था कि गड़बड़ हो जाएगी। ये देख लें, जिस आयत को इस्तेमाल करते हैं, मैंने सिर्फ इतनी गोश गुजार करनी थी मुसलमान भाइयों के लिए कि ये जिस भी कुरान करीम की आयत को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, ये किताबुल्लाह का मुअज्जा है, क्योंकि अल्लाह वादा ला शरीक के इल्म है। अल्लाह वादा ला शरीक के इल्म है। आज ये जो बात हमसे करेंगे, जो बात आज से 100 साल बाद ये और इन जैसे काफिर करेंगे, और क़यामत की सुबह तक जो बात जो है इन जैसे काफिर जो है मुसलमानों के सामने आकर तो करेंगे, उसका इल्म अल्लाह वाला शरीक को है। अल्लाह का कलाम जो है उसका ये मुअज्जा है कि वो सारे इनके सवालात का अहाता करता है। जहाँ से ये कुरान करीम को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, वहीं पर ये फंसेंगे, क्योंकि उसका इनका दरवाज़ा वहीं पर बंद किया जाए। ये देखें, अल्लाह वाला शरीक का जो इल्म है, जो जिसने कि अहाता किया हुआ है हर चीज़ का, तमाम मखलूक का, अल्लाह वाला शरीक ने ये जो नाजिल किया, उसमें इन के आज का सवाल का आज के सवाल को जो है और आज के इनके फितने को रोकने का जो अल्लाह वाला शरीक ने इंतज़ाम 1400 साल पहले फरमा दिया। अल्लाह अकबर। जारी रखें भाई बात को। जी सजाद भाई, आपकी बात मुकम्मल हो गई है जी। आमिर भाई आपको बात करना चाहते हैं? जी 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 ये जी, मैं अहमद बात भाई। करना ये मोहम्मद साहब, जो कि अभी तक के लिए मैं एक अहमदी इनको समझ रहा हूँ, कादियानी, अगर ये बात करना चाहते हैं, दोबारा मैं कह रहा हूँ, नए सिलसिले का आगाज़ करते हैं, अच्छे सलीके तरीके से ये बात करना चाह रहे हैं, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पर अपनी राय, अच्छी या बुरी, ये कह रहे हैं ना तुम्हारी मर्ज़ी की बात, मैंने कब कहा है कि बुरी राय दो? मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर अपनी राय, अच्छी या बुरी या जो भी है, राय दे दें, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी। उसके बाद अगर ये समझते हैं कि इनकी दलील के अंदर कोई दमखम है और इनके इस्तदलाल में ताकत है, तो ये पब्लिक के सामने रख देंगे, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं और कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे कर लेते हैं। चले, अगर इनको ये गम लगता है। मगर जैसे ये अगर कहें कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे लग रहा है इनको शायद दरवाजे बंद होते दिखाई दे रहे हैं, फिर इनकी ज़मीन तंग हो जाएगी, इनके लिए सुकड़ जाएगी। तो ये अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। जी जनाब। जी ठीक है। जी आमिर भाई। जी मोहम्मद साहब बताएं जी, अच्छा, मैंने क्या करना चाहते हैं? ठीक है, मेरी बात सुनिए आप। सवाल सादा सा सवाल है, मैं रिपीट कर देता हूँ, सुने, मैं रिपीट कर देता हूँ, सादा सा सवाल है। अगर आप बात करना चाहते हैं तो बात होगी असूल और ज़ाब्ते के मुताबिक। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बारे में अपनी जो आपकी राय है, आमिर भाई ने हिदायत कर दी, अच्छी या बुरी, दोनों में से एक राय रख दें, आमिर भाई आपसे बात करने के लिए तैयार है। ठीक है। अच्छा, पहले सिजाद साहब की मैं बात का जवाब दे लूं। मेरा ख्याल अगर आमिर भाई से आप बात कर रहे हैं, आमिर भाई से अली भाई एक सेकंड, मैं बिल्कुल जी, आपको सजाद जवाब भाई। की इजाजत नहीं देता। अली भाई एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपको बात की इजाजत नहीं देता कि आप मुझे जवाब दें, क्योंकि मेरी कोई सवाल नहीं था। मैंने एक कुरान करीम से हुक्म बयान कर दिया, बात खत्म है। आपने मुझसे मुनाजरा करना है, दिन और वक्त तय करें, शराइत तय करें और डिबेट हो जाएगी। आमिर भाई से बात करें जिनसे आप मुखातिब हैं। खबरदार आप मुझसे सवाल करते हो। मैंने बात की है, लेकिन मैंने आपके सवाल सुनने के लिए बात सजाद भाई नहीं एक मिनट रुक जाए। अच्छा दोनों दोस्त रुक जाए यार, एक मिनट रुक जाए दोनों दोस्त। मोहम्मद साहब आप आमिर भाई से बात कर रहे हैं, लिहाजा वो पिछला सिलसिला जो भी हुआ उसको खत्म करते हैं। आपने अगर बात करनी है तो शुरू यहाँ से करें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बारे में आपकी राय, अच्छी या बुरी। एक मैं देखें, आप देखें, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, मुझे एक स्टेटमेंट देने का तो हक है ना, इतना तो मेरे से आप ना करें। आप वो आप एंड में दे आप बात दीजिएगा, के बाद पहले कर हमारी बात लीजिएगा। चल रही है, वो बाद में दे दें आप। मैं रिक्वेस्ट जी। कर दूंगा, जो मॉडरेटर जी, थे उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो
ہماری جب گفتگو ریپ اپ ہوگی اس کے بعد آپ کو موقع دیں گے, آپ اپنی رائے رکھ لینا جس چیز کے اوپر بھی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں. مگر اصولی طریقہ کار یہ ہے جو گفتگو آپ کی یوں سمجھیں سستی کی وجہ سے یا آپ کی کاہلی کی وجہ سے جو بات ادھر سے ادھر ہوئی ہے اس کو واپس ٹریک پہ لایا جائے تاکہ سننے والوں کو فائدہ ہو. جی اچھا امیر اکبر جی ٹھیک ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے کم سے کم 5 منٹ کی پہلے بات کی. اب میں اگر بات کو کہیں تھوڑا سا پہلے اس کا تمہید باندھوں تو اس میں آپ نے یہ راز نہیں کرنا کہ میں وہ بات نہیں کر رہا. تھوڑا سا اگر آپ نے اپنے لیے روم چھوڑا ہے تو میرے لیے بھی روم چھوڑیں. دیکھیں میری بات سنیں, پہلے آپ نے جب انٹر ہونا ہے نا تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کو یہ کلیئر کرنا پڑے گا آپ کی پوزیشن کیا ہے, اس کے پیچھے ریزن ہے, آپ سمجھ نہیں رہے. آپ دیکھیں مجھے آپ بے شک ٹائمر لگا لیں, 3 منٹ کا ٹائمر لگا دیں. ٹائمر نہیں لگے گا, ٹائمر نہیں لگے گا, ماڈریٹر یہاں پر موجود ہیں, تو ٹائمر نہیں لگے گا, یہاں پر ماڈریٹر حضرات موجود ہیں. آپ جیسے ہی مرزا غلام احمد قادیانی پہ اپنی رائے دیتے ہیں آپ دوبارہ دیکھیں گے کہ بات کتنے سلیقے اور سکون سے ہونا شروع ہو جائے گی. دیکھیں میں اپنی بات شروع کروں گا تھوڑا سا ایک تمہید کے طور پہ, یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی پوری لمبی چوڑی بات کرنی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پر رائے دینے کے لیے تمہید کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے رکھا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, اس کے لیے تمہید کی ضرورت نہیں ہے, پبلک جانتی ہے. اگر کیوں آپ ایسا معاملہ کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے شاید آپ سیکھنے نہیں چاہ رہے. امیر اکبر ٹھیک ہے, دیکھیں آپ نے بہت آپ اس بات